If you just open your eye, everywhere will be AI. In your clocks, in your fans. This is AI. Your bottle will be AI, your headphones will be AI integrated, everything will be AI integrated. There will be jobs created for AI, but AI चीज़ों को रिप्लेस नहीं करने वाला. इतना सारा डेटा जब AI के अंदर कैप्चर होगा तो डेटा एनालाइजिंग कितना ईजी हो जाएगा. इफ़ यू टॉक अबाउट मेडिसिन, मेडिकल में इतनी सारी बीमारी से होती है, इतना सारा डेटा होता है, वो अगर अपन AI के थ्रू एनालाइज कर सके. क्या तुम्हें लगता है ये कि AI वो सारे काम कर देगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे? वी आर वर्किंग ऑन AI, डूइंग एवरीथिंग थ्रू AI, डेवलपिंग द AI. वन डे आई वेक अप, ओके, शट डाउन द इंटरनेट, वेयर इज AI? Hello everyone, welcome to today's debate on one of the most exciting and controversial topic of our time, artificial intelligence. Is it a powerful tool to advance humanity or does it pose a risk that we are not going to handle? Today we have two students with us who are going to share their perspective on whether AI is good or bad. So let's discuss it. AI, artificial intelligence. So when we think about AI, we have a lot of thoughts. हमें बहुत सारे thoughts आते हैं, यार ये चीज़ अच्छी है या ये चीज़ ख़राब है. I agree कि यार कुछ चीज़ ख़राब भी हो सकती है, लेकिन to develop our culture, to develop humanity, we need AI. तो that's what I agree. That's what I believe कि यार AI की ज़रूरत है. तो firstly, if I say that AI अगर आता है अपने इधर, अगर if we incorporate AI in our lifestyle, our lifestyle will become way more easier and way more efficient. Don't you think? वर्क लाइफ विल बी मच ईजियर, बट क्या तुम्हें लगता है ये कि AI वो सारे काम कर देगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे? That's not what I'm saying. I'm saying कि यार AI अपन के जो कुछ काम है उसे easier बना देगा और काफ़ी सारे काम कर भी देगा. I'm not saying कि यार सारा काम ही वो कर देगा. Once at a time इंटरनेट आया था अपनी लाइफ में, you know, decade old. जब इंटरनेट आया था एवरीबडी वाज लाइक यार इंटरनेट आ गया, हमारी जॉब्स खा लेगा, हमारे पास कुछ करने को नहीं होगा. व्हाट विल यू डू? पीपल प्रोटेस्ट और समथिंग, इंटरनेट एवरीवेयर, यार वी डोंट वांट इंटरनेट, समथिंग लाइक दैट हैपेंड एट दैट टाइम. वहाँ पर भी कुछ इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट थे जो इस टॉपिक के बारे में जानते थे. अब उन्होंने जब कहा, उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने कहा कि यार इंटरनेट आएगा, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ इवॉल्विंग ह्यूमैनिटी. तो इसको आप इनकॉर्पोरेट करो, लर्न करो कि यार ये चीज़ को यूज़ करके हम कैसे बेटर हो सकते हैं. और नाउ एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन AI. We are shooting this debate, we are shooting this discussion. This will be present on internet. Because of internet, we can see, people can see our interaction. So, पर इसका मतलब ये नहीं कि सारी jobs ले ली. There are a lot of other jobs that is created, or a lot of jobs. The same goes with AI. AI के साथ लोग कहते हैं जो blue collar jobs है, जो lower level पे है, वो सब चली जाएंगी. और what I believe is वहाँ से jobs आएंगी, लेकिन उसके अलावा 10 times in number jobs will be created. Don't you think? There will be jobs created for AI, but AI चीज़ों को रिप्लेस नहीं करने वाला है. Correct. That's what I think. और that's what most of the people who are boycotting AI right now in America, in around the world, are saying this. Because AI can be threat because we are enabling somehow data inside AI. Correct. और हम जो भी डेटा दे रहे हैं वो बहुत बड़ा थ्रेट है. डेटा को मॉनिटर करके AI कुछ भी कर सकता है. बट या लाइफ ईजी हो जाएगी, लाइफ में प्रॉब्लम बहुत सारे सॉल्व हो जाएंगे, जो हार्ड वर्क है वो बहुत ज़्यादा सॉल्व हो जाएगा. ब्रेन ह्यूमन हमारे धीरे धीरे वी कैन से दैट, पीपल से दैट कि जो ह्यूमन ब्रेन है दैट जो IQ है वो increase होता जाएगा, that will get smaller because we will No, stop. they say that brain will get bigger and your body will get smaller because you won't be Yep. doing any hard work and everything you will be doing by your brain. So Yep. your brain will increase in size Yep. and your body will get small. Yep. But I agree with your point. But as you have mentioned, जैसा तुमने अभी कहा कि AI आ जाएगा तो बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज आ जाएंगे, डेटा लीक हो जाएगा, Yep. एवरीथिंग. Yep. तो इंटरनेट के टाइम पे भी यही इश्यूज थे कि यार इंटरनेट आ जाएगा, एवरी इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, और अभी हम वो प्रॉब्लम फेस भी कर रहे हैं, बट वी हैव सोल्यूशन फॉर दोज. हमारे पास ऐसे साइंटिस्ट है, ऐसे टेक्नीशियंस है, इंजीनियर्स है, हु आर वर्किंग ऑन दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. उन्हें पता है कि यार ये प्रॉब्लम्स आ रही है, हाउ वी कैन सॉल्व दिस, और बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती जा रही हैं. तो दैट्स द सेम प्रॉब्लम विल फेस विद AI, बट विल बी एबल टू फिगर आउट. बट ऐसा तो हो नहीं सकता अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजी है या फिर कुछ एक नई चीज़ है तो वो 100% आपको गुड रिजल्ट्स दे. बी इट बी फोन्स, टेक्नोलॉजी, एनीथिंग, बी इट बी स्पोर्ट्स. If you talk about sports,
पूरा टाइम स्पोर्ट्स खेलोगे, पूरा दिन अगर आप दैट्स इफ यू टॉक अबाउट अस, वी लाइक फुटबॉल, अगर अपन पूरा दिन फुटबॉल खेलेंगे तो हाउ विल इट हेल्प अस? वो अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय करेगा, अपन को ज़्यादा एनर्जेटिक अच्छा स्टैमिना करने की जगह। तो सेम गोज विथ AI, उसे अच्छी चीज़ के लिए यूज़ करोगे तो इट विल हेल्प। तो वही गवर्नमेंट का रेगुलेशंस लाना, दे आर वर्किंग ऑन इट, आई एम श्योर दे आर डेफिनेटली वर्क, दे विल हैव वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स रिगार्डिंग दैट। बट जो डेटा की बात करेंगे, डेटा लूज हो जाएगा, आई एग्री, उसके लिए रेगुलेशंस चाहिए और वो आएंगे। पर इतना सारा डेटा जब AI के अंदर कैप्चर होगा तो डेटा एनालाइजिंग कितना ईजी हो जाएगा। इफ़ यू टॉक अबाउट मेडिसिन, मेडिकल में इतनी सारी बीमारीज होती है, इतना सारा डेटा होता है, वो अगर अपन AI के थ्रू एनालाइज कर सके तो जो डॉक्टर है उसके कंपैरिजन में मोर एफिशिएंट डायग्नोसिस उसे प्रोवाइड कर पाएंगे, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ डिजीजेस और डॉक्टर कभी कभार मिस कर देता है चीज़ें। पर अगर AI का डेटा विद द हेल्प ऑफ, आई एम नॉट सेइंग कि डॉक्टर पूरा हट जाएगा, डॉक्टर विल टेक द हेल्प ऑफ AI एंड टुगेदर दे विल मेक अ बिग चेंज। दैट्स व्हाट आई मीन। यार AI आपको एज अ बेटर पर्सन, आप जो भी आप काम कर रहे हो उसके अंदर आपको बहुत बेटर बना देगा। यू आर वैलिडेटिंग दैट पॉइंट दैट कि AI उसको बहुत बेहतर बना देगा, इन्हेंस कर देगा। या AI इन्हेंस कर देगा, क्या AI इंजेक्शन लगा देगा? नहीं ना, इंजेक्शन नहीं लगा सकते। करेक्ट। क्या AI फिजिकल रोबोट्स को कमांड दे देगा? It's always human who is going to operate it. Correct. So better So depend on that's a human. good thing for AI, na? Because that's a if good we thing. are operating the AI system, if we are someone जिन्हें उन्हें prompt करा है, जिन्हें उन्हें कोड करा है, सारी information जो हमें पता है वही उन्हें पता है, तो that's a good thing कि अपन AI को under control रख सकते हैं. That's not a bad point. That's not a bad point. और I'll say that कि AI इंजेक्शन भी लगा देगा, मान लेते हैं। चलो मान AI सारी चीज़ें कर देगा जो भी हम सोच रहे हैं। क्या AI उस वे में सोच सकता है जिस वे में हम सोचते हैं? No. नहीं सोच सकता। So that's a good part of AI. ह्यूमन नेचर में जब ह्यूमन ने AI को बनाया या फिर AI से जो भी हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं, हार्डवर्क AI फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकता है। AI जहाँ तक है इंटरनेट तक है। AI फिजिकल वे में प्रोडक्ट्स के ऊपर डेवलप कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं उस पर कि प्रोडक्ट कैसे हम इन्हांस कर सकते हैं, जहाँ पे AI अपने वे में उस चीज़ को कंट्रोल करे, राइट? बट देयर कैन बी मेस। क्या ये मेस के बारे में नहीं सोच रहे तुम लोग? There can be a mess, पर जैसे तुमने अभी जस्ट पॉइंट मेंशन करा कि AI फिजिकल वर्क नहीं कर पाएगा, पर अगर तुमने देखा हो कि इंडिया तो अभी बहुत पीछे है AI डेवलपमेंट में, रोबोट्स में, एवरीथिंग में। पर इफ यू टॉक अबाउट जापान, तो जापान के अंदर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं और बहुत सारे ब्लू कॉलर जॉब्स हैं वो AI करने लगे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट में सर्व करना AI कर रहा है, तो दैट्स टोटली मतलब वो आपके पॉइंट को बिल्कुल डिनाई कर देता है कि यार वो हार्ड वर्क, फिजिकल वर्क नहीं कर सकता। AI कैन डू मोर एफिशिएंटली, फिजिकल वर्क को बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली कर सकता है कंपेयर टू ह्यूमंस। AI अभी किस वे में बेटर नहीं है, वो बस एक ही चीज़ में बेटर नहीं है, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, जस्ट लाइक ह्यूमंस। वो AI इमोशनली नहीं सोच सकता अपने जैसे। अपन अगर इमोशनली सोच के अगर कुछ इनपुट डाल रहे हैं AI के अंदर, तो ही वोंट बी एबल टू रिस्पॉन्ड इन अ वे कि हमें जैसा चाहिए। हमारे इमोशन, वी कैन बी इन अ गुड मूड, वी कैन बी इन अ बैड मूड, और व्हाट आई फील इज दैट्स अ गुड थिंग फॉर नाउ। जब तक अगर अपन AI को अच्छे से समझ नहीं लेते, अभी ऐसी टेक्नोलॉजीज पे काम चल रहा है जो इमोशनल इंटेलिजेंस AI के अंदर इमोशंस को इंटीग्रेट करने की चल रही, पर इट विल टेक अ व्हाइल, but until then it's good for us. I don't think it will take a while. It will take much more like than that. It can take it can take centuries actually, because हम जहाँ भी पहुँचे हैं कहीं ना कहीं ह्यूमन इम्प्रूवमेंट की वजह से पहुँचे हैं, और ह्यूमन जितना इम्प्रूव कर रहा है इट हैज़ लाइक रीच टू अ पॉइंट जहाँ पे हम AI को इम्प्रूवमेंट के ऊपर अब बात करने लगे कि अब AI को कैसे इम्प्रूव करना है कि हमारी लाइफ और सॉर्टेड हो जाए, राइट? बट शॉर्ट करने के चक्कर में AI हमें शॉर्ट ना कर दे, दैट्स व्हाट आई थिंक। और AI जब हम रोबोटिक मूवीज़ देखते हैं, बात जहाँ पे लाइक फुल कंट्रोल इन ऑन रोबोट्स और समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे मैनिपुलेट कर रहे हैं, AI इस कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करनी स्टार्ट कर देगी चीज़ों को, अगर उसके अंदर उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ गई। कुछ गलत तो होगा, पर वी आर वर्किंग ऑन द सॉल्यूशंस ऑफ दैट। इंटरनेट आया था, इंटरनेट के भी बहुत कॉन्स थे, एवरीथिंग कैन बी पब्लिश ऑनलाइन, अभी भी हो रहा है, लोगों के वीडियोस रिकॉर्ड होकर ऑनलाइन चले जाते हैं, देयर आर लॉट ऑफ प्राइवेसी ब्रीचेस एवरीथिंग। पर इसका मतलब ये थोड़ी कि AI इंटरनेट बंद कर दिया है, कि इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट की ज़रूरत है, पर जो प्रॉब्लम्स है विल फोकस ऑन दोज प्रॉब्लम्स एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन फॉर दोज प्रॉब्लम्स। Valid point. Okay. We are working on AI, doing everything through AI, developing the AI. One day I wake up, Okay. shut down the internet. Where is AI? AI for now is nowhere. If you talk about now, but after a while,
if you just open your eye, everywhere will be AI. In your clocks, in your fans, this is AI. Your bottle will be AI, your headphones will be AI integrated, everything will be AI integrated. So if you talk about after a decade, I can assure you, if you talk about, ये पहले जल्दी भी हो जाएगा, पर अगर आप देखते हो 10 साल बाद, तो 10 साल बाद आप अपनी आंखें खोलो, एवरीवेयर विल बी AI. आपके कपड़ों में AI आ जाएगा, who knows, कि आपके कपड़ों के अंदर AC लग जाएगा, वो हवा कर रहा है, who knows यार, that's a good thing. मुझे तो चाहिए यार, बहुत गर्मी है मेरे उधर. कह सकते हो उस चीज़ को, बट आई स्टिल थिंक कि जितना भी कर लो, जहाँ तक भी जाने का सोच रहे हो चले जाओ, जो ह्यूमन टच है वो Correct. कहीं नहीं जाने वाला है. Correct. जो ह्यूमन फील है, तुम डेवलप इसलिए एआई को कर रहे हो क्योंकि तुम्हें चाहिए कि ह्यूमन फील आ जाए, ह्यूमन नेचर आ जाए. कैमरा डेवलप कर रहे हो, एआई लेकर आ रहे हो ताकि वो ह्यूमन वाली चीज़ें लेकर आओ. God has created us. Correct. And God has created us in such a way that we be capable of our things. Correct. और हम God बन रहे हैं AI के कहीं ना कहीं. So wherever it will be under our shoes only. Yeah, that's the good thing. ये तो और अच्छी बात है ना, अगर किसी चीज़ को कंट्रोल कर पा रहे हो मैनर में, तो जैसे तुम्हारे खुद के पॉइंट्स को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिए कि यार पहले तुमने बोला AI ऐसा कर देगा, AI डेटाबेस में ये कर देगा, AI will penetrate in your privacy and everything. But now you are saying that we are the one above them, we are the god of AI, then we can control the AI. Then you have the answer of your own question. We can control the AI, then we can control the repercussions also. If we can't control the repercussion, we can minimize the repercussion. और जितने repercussions बचेंगे, जो थोड़े बहुत भी होंगे, we can figure out a solution for those. Valid point. AI will be dependent on AI somehow. We are already dependent on AI because whatever we type, whatever we think, like if you write something, right, the suggestion is already there, how are Correct. you? So it is AI that Yeah. it is like somehow giving you suggestion or something. Yeah, we are doing it, but still हम कहाँ तक इसको लेकर जाएंगे, ये सवाल बहुत बड़ा है और बहुत डेप्थ है इस चीज़ में. यही घर तो नहीं बना देगा, ह्यूमन सोर्स तो नहीं, लाइक ह्यूमन रिसोर्स की तरह काम नहीं करेगा. अगर ह्यूमन रिसोर्स की तरह काम करेगा तो क्या ह्यूमन, हम फिर ज़रूरत ही क्या है हमारी? फिर तो हम सिर्फ हम पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं. हम एआई को लाइक एआई को और काम देने के लिए हम बस विल रिप्रोड्यूस, दैट्स इट. व्हाट विल बी द सेंस ऑफ बीइंग. इंटरनेट आने से पहले का भी ये क्वेश्चन था लोगों का कि यार अभी हम सारा काम इतना सारा कर रहे हैं, वी हैव लॉट ऑफ वर्क्स टू डू, हमारे पास इतना सब कुछ करना है, इंटरनेट आ जाएगा तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाएगी, हम कर ही नहीं पाएंगे कुछ, हमारे पास कुछ करने को ही नहीं होगा, हम तो खाली हो जाएंगे. उस टाइम भी ये क्वेश्चन था, लेकिन नाउ वी आर हियर, वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क्स टू डू, कि हमें इतना काम है कि यार एआई इंटरनेट इन सब के होने के बावजूद भी हमें फ्री टाइम नहीं मिल रहा. व्हाई इज दैट? इफ़ यू थिंक अबाउट दैट, अभी तुम भी कहते हो कि यार तुम्हारे पास टाइम नहीं, यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, वी स्टिल यूज एआई टू मेक आवर प्रेजेंटेशन. तो डोंट यू थिंक इतना हेल्प करने के बाद भी अपन के पास फ्री टाइम नहीं है, तो उस टाइम होगा. बिकॉज अभी जो अपन काम कर रहे हैं, 10 साल पहले किसी को पता नहीं था कि यार दिस टाइप ऑफ वर्क एग्जिस्ट, वीडियो एडिटिंग काइंड ऑफ थिंग एग्जिस्ट. तो पहले तो लोगों को पता भी नहीं था कि यार ऐसे करा जाता है, एआई ऐसे यूज़ करा जाता है. तो अभी अगर अपन को पता चल रहा है, तो जो जॉब्स आगे जो अपन कह रहे हैं कि अलग डोमेन्स में क्रिएट होंगी, वो बहुत बड़ा डोमेन है वो. तो ऐसा है कि अपन को कुछ करना ही नहीं होगा कि एआई इतना बड़ा बना रहे हो, हर जगह एआई है, तो उसे चलाने वाले भी तो कोई लोग होंगे जो उसे पीछे से देख रहे हैं. क्योंकि तुमने ही कहा कि यार एआई को अपन ने बनाया, वी आर द गॉड ऑफ एआई, तो वी हैव टू कॉन्स्टेंटली मॉनिटर द एआई. बट या स्टिल वी कांट रिलाई ऑन एआई. Nobody is saying you to rely on AI. You can do your research on your own. Don't use ChatGPT. It's not a hit and fast rule, क्या तुम्हें करना ही करना है. It's your choice. वहाँ पर भी आपके हॉस्पिटल्स में चॉइस होगी कि यार आप AI से अपना ऑपरेशन कराना चाहते हैं because it will cost you. At the end you're cheaper. relying on human now. Yeah, we'll be relying on human because just you have said कि यार human is the god of AI. We got some very interesting perspective from both sides. Now, AI may be a risk or a reward for us, but it is ultimately on us. How are we going to use it? And it definitely affect our future.